Good morning everyone and welcome to the class. We are doing according to your RT3 paper 5 syllabus, and accordingly we are doing this chapter challenges of nation building, which is there in your RT3 paper 5 syllabus. This is the only chapter which is there in the syllabus. So this is the time you focus on each and every chapter because you are given enough time, and utilize the time in a proper way so that the outcome will be better. Okay, तो अभी हम लोग चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जो हमने कल जिस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेनी नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड एंड इन डिफरेंट मार्क्स, कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में, कभी 6 मार्क्स में दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. द क्वेश्चन इज कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रिपेयर द क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स सो दैट जितने भी, अगर 4 नंबर में आता है तो भी आप लिख सकेंगे, 2 नंबर में आता है तो भी आप लिख सकेंगे. तो अगर हम 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो दैट विल बी बेटर, है ना. तो इसमें हम लोग यही क्वेश्चन, पहले आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन. ओके, yes, the question is analyze any 6 consequences of the partition of India in 1947. Analyze any 6 consequences of the partition of India in 1947. So we have started our discussion. The first consequence was with the partition of the country, there was a displacement of the population, and what we find that this displacement of the population was totally unplanned, and because of this unplanned displacement there was high level of violence, and so many people were killed, and so many atrocities held during that process. So in this point you have to discuss about that violence, but before coming to the point, your answer must contain introduction, as I told you earlier also. तो इस क्वेश्चन को करने में, analyze any 6 consequences of the partition of India in 1947, what should be your introduction? इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? The introduction will be कि India got independence on 15th August 1947, but with independence some problems were also there, and one of some challenges, you can say, no, don't say problems. With the independence of the country, it was also facing some major challenges, and one of such challenge was the problems which were created because of पार्टीशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने थे, और इन चैलेंजेस में एक जो मेजर चैलेंज है वो है उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए जो पार्टीशन के कारण आए. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, then faced challenges, and one of the challenge is one of the challenge
one of the challenges is this problems caused by partition. Okay, ये इसको ही आपके these main things should be there in your introduction. And now you come to the consequences. ठीक है, ये introductory part होने के बाद आप consequences पे आएंगे. The first consequence is unplanned displacement of population. Okay, किस तरह से पॉपुलेशन का अनप्लान्ड डिस्प्लेसमेंट होता है एंड व्हाट लीड्स, ये अनप्लान्ड डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के तरफ ले जाता है कंट्री को. ये इसके कारण वायलेंस एंड किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज एंड राइट्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू explain it in this point, and you have to explain the communal zones also, as we have discussed कि किस तरह से अमृतसर और कोलकाता में कम्युनल जोन्स बन गए थे, जहाँ पर कि अगर वो हिंदू जोन है तो वहाँ मुस्लिम जाने से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, अगर वो मुस्लिम जोन है तो वहाँ हिंदूज नहीं जाना चाहते थे. तो इस तरह की कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही थी. तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा. इसमें आपको एक डेटा भी है, जो कि ये डेटा आपको देना काफ़ी अच्छा होगा, ये आंसर में आपके होना चाहिए. और वो डेटा ये है कि इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो हो रही थी इसमें इसका क्या असर पड़ा, इसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए. तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट. ठीक है, जहाँ पर वो थी वहाँ से उनको माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना पड़ा. तो 80 लाख पीपल वेर फोर्स टू माइग्रेट एंड ऑफिशियली इट इज़ estimated that 5 to 10 lakh people were killed. ऑफिशियली यही एस्टिमेट है, हालांकि अनऑफिशियली ये काफ़ी ज़्यादा होगा, बट यू डोंट नीड टू राइट अनऑफिशियल डाटा, ओनली ऑफिशियल डेटा शुड बी देयर. सो 80 लाख पीपल जो है वो माइग्रेट हुए थे एंड बिटवीन 5 to 10 lakh people were killed. It must be there in this point. ठीक है, 80 lakh people migrated and 5 to 10 lakh were killed. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी इससे मिलता जुलता ही पॉइंट है, वेरी मच सिमिलर पॉइंट्स है कि किस तरह से ये जो पार्टीशन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा माइनॉरिटीज़ पे. ठीक है, स्पेशली जो नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे वो दैट विल बी अबाउट द माइनॉरिटीज़, हाउ देयर लाइफ वाज अफेक्टेड. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा माइनॉरिटी से रिलेटेड होगा. So how the life of minorities got affected because of partition. So what we find that the minorities have to abandon their house forcefully, है ना. और जब वो एक तो उनको घर से ज़बरदस्ती छुड़वाया जाता था, और जब वो घर छोड़ के अपना इस साइड से दूसरे साइड बॉर्डर जा रहे होते हैं तो उन पर फिर वो अटैक होता था. तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो बहुत ही कॉमन चीज़ें थी, एंड दोनों ही कंट्री में माइनॉरिटीज बिकेम द टारगेट. ओके, सो नाउ योर सेकेंड पॉइंट इज माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर minorities on both sides of the border were targeted, है ना, उनको टारगेट किया जाता था और टारगेटेड बाय द मेजॉरिटी ग्रुप.
एंड अंडर दिस पॉइंट यू कैन एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स कि किस तरह से उनको फोर्सफुली अबैंडन करने के लिए फोर्स किया जाता था, देन उन पर अटैक होता था। और इसमें आप वुमेन एंड चिल्ड्रन की कंडीशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज जो भी वीक होते हैं उनके साथ जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो एक प्रॉब्लम जब आती है तो उसके साथ हम क्या देखते हैं ना कि जो वल्नरेबल ग्रुप होती है उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। लाइक वल्नरेबल ग्रुप, जहाँ यहाँ पर एक फैमिली के अंदर जो वल्नरेबल ग्रुप है वो वुमेन है, चाइल्ड है, तो ये इन दोनों की जो मुसीबतें हम कहेंगे वो बढ़ गई थी समय। बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ भी बहुत हुआ और वुमेन अब्यूज़ हुआ, ऑनर किलिंग्स हुए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब when people crossed the border and migrated to their own country, it was nothing but to spend life in refugee camps, sometimes for few days, sometimes for few months, and sometimes for years. So this was the life of the people because they migrated, they left their home. अब उनके पास और कुछ भी नहीं था, तो इस तरह के कंडीशन में उनको रेफ्यूजी कैंप्स में, जो कि काफ़ी जिसको कहेंगे कि बिल्कुल भी अच्छी कंडीशंस नहीं होते थे, द कंट्री वॉज नॉट इन सच अ सिचुएशन टू प्रोवाइड सो मेनी फैसिलिटीज इन दीज रेफ्यूजी कैंप्स। तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पर आई, ठीक है। ये भी हमारे कंसिक्वेंस होगा कि people or migrated people, you can say, yes, migrated people were forced to live in refugee कैंप्स, ठीक है। और जो कंडीशन थी उसको आप बता सकते हो कि रेफ्यूजी कैंप्स में किस तरह के उनके लिए प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये थी उनकी कंडीशन कि मतलब जिस जगह पे वो उनके एंसेस्टर्स सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं, वो जगह उनके लिए विदेशी बन गई, मतलब वो अपना देश नहीं रहा, और उसको छोड़ के उनको फोर्सफुली दूसरे देश में, मतलब उनका सो कॉल्ड अपना देश, या हिंदू हैं तो आपको हिंदुस्तान जाना होगा, पाकिस्तान इज़ नो मोर योर कंट्री। और जब वो यहाँ आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो फिर उनको रेफ्यूजी कैंप में अपने लाइफ को स्पेंड करना पड़ता है। तो ये आपका एक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो इन सबसे बिल्कुल, ये तीनों पॉइंट आपस में अगर देखा जाए तो एक दूसरे से, जो हमने तीनों डिस्कस किया है, दीज 3 पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट, एंड इट इज दैट बिकॉज ऑफ पार्टीशन व्हाट हैपेंड दैट द क्रिएटिव पीपल like writers, poets, filmmakers, they started to express their feelings. वो अपने feelings को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किए। बहुत सारे पोएम्स लिखे गए, जैसे कि हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, अमृता प्रीतम, देन फैज़ अहमद फैज़, उनके पोएम्स। So they expressed the ruthlessness of the killings which occurred during that period, and then they also expressed the suffering of displacement and violence, किस तरह से लोगों को क्या क्या सफ़र करना पड़ा। तो ये सारी जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ a consequence, one of the consequences of partition. So creative expression through poems, novels, movies, songs, etc. है ना।
तो ये हमारा हो गया किस तरह से लोगों ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया बिकॉज ऑफ पार्टीशन, दैट इज वन ऑफ द consequences. And now we will see that this partition was not only the partition of the country. Actually we see that ये पूरा का पूरा जो इस पार्टीशन के अंदर प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज एंड असेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसका भी पार्टीशन हुआ था. जो भी जैसे कि लाइबिलिटीज एंड असेट्स हैं, देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है उनका भी पूरा का पूरा डिवीज़न होता है, पार्टीशन होता है. और जो फाइनेंशियल असेट्स थे और चीज़ें हैं जैसे टेबल हैं, चेयर हैं, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का, जो पुलिस बैंड के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उन सब का पार्टीशन हुआ था. नॉट ओनली दिस, एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवेज, दे वर ऑल्सो डिवाइडेड इन these two countries. तो इस तरह से ये जो सेपरेशन, जो पार्टीशन हम देख रहे हैं, it was not only a political division of the country but it was a division of administrative apparatus and it was also division of properties, liabilities and assets. तो ये भी आपका एक consequence में आएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, better I should erase it. ओके, तो हमने 4th पॉइंट तक कर लिया है. अब 5th पॉइंट है जो कि आई एम राइटिंग डाउन. The 5th point is partition of financial property, partition of financial property, assets and liabilities. ओके, असेट्स और लाइबिलिटीज का भी ये डिवीजन हुआ था. And it was also a division of administrative apparatus. Administrative apparatus. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चीज़ें हुई वो एक ये कॉन्सिक्वेंस है. और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है ये थोड़ा सा मतलब अच्छा कॉन्सिक्वेंस कहने का ये मतलब है कि इससे एक सेपरेट क्वेश्चन भी निकलता है जिसको कि कल हमने डिस्कस किया था, और वो था कि सेकुलर कंट्री क्यों हमने अडॉप्ट किया. तो हमारा जो पार्टीशन हुआ, दैट पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन ओनली, है ना, कि 2 नेशन थ्योरी एडवांस किया गया, मुस्लिम लीग ने किया कि 2 नेशन जो एक साथ नहीं रह सकते हैं. इंडिया इज अ 2 नेशन बिकॉज 2 डिफरेंट रिलीजन people belonging to 2 different religion are living together. It is not possible because they constitute 2 different nation, and on that basis this 2 nation theory was advanced by Muslim League. But what we find that even after this displacement of population, even after this partition of the country, what happened that in India still there were 12% of the population belong to Muslim community according to the census of 1951. तो अब क्या देख रहे हैं कि पार्टीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम पॉपुलेशन तो अभी भी 12% है. तो अब क्या हो गया कि इंडिया में
ये इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी आ गई, और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अगर 12% मुस्लिम हैं तो इसका मतलब दे आर इन द माइनॉरिटी कंडीशन। तो अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिससे कि सबके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके, सबके फियर को दूर किया जा सके, और एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। एंड रिजल्ट वाज adoption of a secular constitution. We are a secular nation because हमारे यहाँ सबको रिलीजन की आज़ादी दी गई। एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा गया, एंड एवरी रिलीजन इज सेम इन द आइज ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ें जो हुई, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन दैट वी हैव। और फिर ये भी बात है कि पार्टीशन में जो कुछ भी जितना वायलेंस हुआ था उसके कारण अब ये समझ में आ गया था कि जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है उस पर स्ट्रेस नहीं देना होगा, बिकॉज अगर हम रिलीजियस आइडेंटिटी पर स्ट्रेस देंगे तो कभी भी हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा कंट्री में। तो हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो बिटवीन द कम्युनिटीज़, कंट्री में पीस हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी देयर शुड बी फोकस ऑन द national identity, and that is why this secularism was adopted in our constitution. Okay, तो ये हमारा एक another reason बनता है, that is adoption of secularism in the Indian Constitution. And one more thing you can add, that focus on national identity, है ना। तो इस तरह से ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। कंप्लीट नहीं होता है अभी भी इसमें, अगर आपको कंक्लूजन के बिना योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट। तो कंक्लूजन में हमारा क्या कंक्लूजन आएगा? कंक्लूजन हमारा यही होगा कि जिस लेवल का, जिस तरीके का पार्टीशन हुआ और जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हमको यही कहता है कि हमारे लिए रिलीजियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए है वो है नेशनलिज्म। instead of being affiliated to our religion, we should try to be affiliated to our country, our nation, है ना। तो वो एक जब इस तरह का व्यू आएगा तभी कंट्री में हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप होगा। ये दैट शुड बी योर कंक्लूजन। सो इन दिस वे योर आंसर इज कंप्लीट। एंड नाउ वी मूव टू another question. There are many other questions from this chapter only. This question, analyze any 6 consequences of the partition of India in 1947. Actually, as I told you, कभी 6 consequences पूछा है, कभी 2 consequences पूछा है, कभी 4 consequences पूछा है। तो उस हिसाब से इसको अगर आप समझिए 2019 में ये ऑल इंडिया में आया था, उसमें ये 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। It was a 6 marks question in the year 2019. Then again in the year 2016 the same question was there, all India, जिसमें कि ये 6 नंबर का ही क्वेश्चन था। और उसके अलावा दिल्ली 2014 में भी ये क्वेश्चन आया है और उस समय भी ये 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। And other than this, we see that this question was there in Delhi 2013 also, and in 2013 it was a 4 mark question, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको 6 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एक और भी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 3 challenges
फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया जो चैलेंजेस फेस कर रहा था उन चैलेंजेस के बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया है दिल्ली 2014 में और दिल्ली 2010 में भी द सेम क्वेश्चन वाज देयर एंड इट्स इज ऑल्सो अ 6 मार्क क्वेश्चन। तो जिसमें 3 चैलेंजेस है एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स। तो मतलब पर चैलेंज 2 मार्क्स इज अलॉटेड, है ना। तो अगर आप तीनों चैलेंज को अच्छे से लिखते हैं तो 2 मार्क्स करके वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज so now the question is explain any 3 challenges faced by India at the time of its independence. So this is a very simple question and we have discussed about in very detail that when the country got independence, it was not an easy task because so many challenges were there in front of the country, and the first and the most important challenge before the country was the challenge of nation building, है ना। तो इसमें हमारा जो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इंट्रोडक्शन में आपके क्या होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी देयर इन द इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपके इसमें क्या होना चाहिए कि इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस एंड दैट द स्पीच डिलीवर्ड बाय नेहरू, दैट इज अ ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और उस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी में किस तरह से उन्होंने ये बताया कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि अब हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो गई, बल्कि अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इसमें भी आपके जो इंट्रोडक्शन होगा वही होगा कि India got independence, then what? That tryst with destiny, नेहरू के स्पीच के बारे में आप बताओगे। इसका जिस्ट यही है कि विथ इंडिपेंडेंस इट्स नॉट कि वी गॉट समथिंग एंड नाउ वी डोंट नीड टू वर्क, है ना। नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड एक्चुअली बिकॉज अब हमारे काम बढ़ गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बारे में आप बताते हुए नाउ यू कम टू द challenges which country was facing at the time of its independence. So the first challenge is and the most important is the challenge of nation building, which is the name of the chapter itself, है ना। challenge of nation building. The first is ये चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि देखो, सबसे पहले जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक नेशन है ही नहीं। खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर यूरोप के कंट्रीज में जो नेशन का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम देखेंगे तो इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक नेशन है ही नहीं, बिकॉज कोई एक चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हमें जोड़ती है, ना तो लैंग्वेज, ना कल्चर, ना रिलीजन, ना ट्रेडिशन। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, ऐसे डाइवर्स कंट्री कैन नॉट बी अ नेशन,
बट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इसलिए चुनौती बनी क्योंकि एक तो हमें पार्टीशन को झेलना पड़ा, पार्टीशन के कारण डिस्प्लेसमेंट के कारण वायलेंस। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम थी वो थी दिस इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए, है ना। तो ये हमारे नेशन के रूप में हमको एक उभरने में, इमर्ज करने में हमारी सबसे बड़ी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी, ऐसा एक डर, एक फियर आ गया था हमारे नेशनल लीडर्स के मन में कि जिस तरह से पार्टीशन पाकिस्तान का हो गया, इंडिया टूट गया 2 पार्ट में, वैसे ही कहीं इंडिया के कई सारे पार्ट ना हो जाए। जिस तरह से जो देसी रियासतों का जो चल रहा था और जो प्रोविज़न किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में ने जो हमें आज़ादी दी, उसमें ये प्रोविज़न लगा दिया गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको 3 ऑप्शन दे दिए गए, आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन करिए या इंडिया ज्वाइन करिए या आज़ाद रहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रीज़न यही था। तो एक बहुत बड़ी जो चैलेंज हमारे सामने थी कि कैसे एक नेशन के फॉर्म में हम इमर्ज करें और इसके लिए पार्टीशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, वायलेंस को रोकें, देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स किया जाए। ठीक है। अब दूसरा जो चैलेंज हमारे सामने था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। So establishment of democracy is not something which can be done only by making provisions in the constitution, है ना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करके हम कह दें कि हाँ हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना ली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना पड़ता है। जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो प्रैक्टिसेस अगर लोगों के अंदर नहीं आएंगी तो डेमोक्रेसी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। जो लीडर्स हैं उनको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जो कंट्री इतने सालों से कॉलोनियल रूल में रहा है, जिसने आज तक डेमोक्रेसी का स्वाद नहीं चखा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज द कंट्री वॉज फेसिंग। एंड द थर्ड चैलेंज वॉज द चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिकॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल क्या हुआ था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। न तो हमारे एग्रीकल्चर को पर ध्यान दिया गया, ना इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया। हर तरह से हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वी वर जस्ट यूज्ड फॉर द रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनते थे, वहाँ से चीज़ें आती थी और हमारा मार्केट यूज़ होता था। तो हमारा कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो अब हमारे सामने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स, इतनी बुरी तरह की प्रॉब्लम सामने खड़ी थी कि जो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए। तो ये दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, इन्हीं को आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और कंक्लूजन में हम यही देंगे कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप थे उन्होंने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उसको फेस भी किया, उन्होंने सही ढंग से उसको पूरा भी किया। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास सम अदर क्वेश्चंस।